ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਕਿ B.F. ਸਕੀਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਨੇ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। इसने कहा कि स्किनर believed that the best way to understand behavior is to look at the causes of an action and its consequences। कि अगर किसी बच्चे के बिहेवियर को जानना है तो ये देखना है कि जिस तरह बच्चा बिहेव कर रहा है उसके क्या कारण है, कॉजेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस देखने। तो 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ। मैं इसको हाईलाइट कर लगाना था बच्चे। बिहेवियर ऑफ एनिमल्स ਤੇ ਇਸਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਸਟਿਮੂਲੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ। ठीक है। Basically he wanted to know why the animals acted the way they do। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਪੈਸਿਵ and wait for something to happen for it to respond। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੈਵਲੋਵ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪੈਵਲੋਵ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? कैट डॉग दे उत्ते डॉग थे कैट बच्चे ट्रायल एंड एरर ਦਾ ਹੈ। ਪੈਵਲੋਵ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। यस यस मैम यस सर ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। The child expresses fear only when hears a loud noise। ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਉਦੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ the dog wait for food to arrive before salivating। ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਲਾਈਵਾ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। यस सर the subject has no control over the happening। ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਡੌਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ एनवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। he is made to behave in response to the stimulus situation। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ stimulus situation ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਕਿਨਰ ਨੇ क्या कहा? ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। the stimulus उसने कहा नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। उसने कहा भी जे ਅਸੀਂ स्टिमुलस नहीं देवांगे ताकि रिस्पॉन्स नहीं आएगा। उसने इसके अगेंस्ट कहा। उसने कहा कि रियल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ we cannot wait for things to happen in the environment। ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ environment ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੀਏ। learner may often manipulate the environment with own ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਹੈ ਉਹ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ operant conditioning। ਠੀਕ ਹੈ। because it is based on certain operations or actions which a person has to carry out। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਲਰਨਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ operant conditioning ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਰਨਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ
फिर उसनू रीइनफोर्समेंट मिलती है। यह प्रोसैस जिहड़ा रिस्पॉन्स और रीइनफोर्समेंट का है ये चलता है, रेपिटिशन होती है बार बार, और फिर इसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग हो जाती है। बच्चे अज तक पता लग गया क्या फर्क है दोनों च, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक मैं फर्क दसदा, बच्चे आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग दे विच क्या हुंदा है, पहला जिहड़ा लर्नर है उसनू स्टिमुलस दिखदा है या उसनू दी स्मैल आंदी है, जिवें खाने दी स्मैल आई डॉग नू, तां वो रिस्पोंड करदा है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो पिछली थ्योरी आपां ने करी है उस दे विच की हुंदा है, पहला उसनू स्टिमुलस दिखदा है और फिर वो रिस्पोंड करदा है, यानी कि वो केड़ी थ्योरी है, एसआर थ्योरी। ठीक है, स्टिमुलस देन रिस्पोंस। लेकिन स्किनर ने इसनू रिवोल्ट करया या इसके अगेंस्ट कहा। स्किनर ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम इन्वायरमेंट दे विच कुछ ना कुछ होएगा जिसनू देख के जिहड़ा लर्नर है वो बिहेव करेगा। लर्नर कई बार अपने इन्वायरमेंट को अपने बिहेवियर के नाल अपने आप ही मैनिपुलेट करता है, और इसने क्या कहा, इसने आरएस दिता है, बच्चा रिस्पॉन्स पहला करता है और फिर उसके रिस्पॉन्स को देख के असी उसको रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, देन यही प्रोसेस जिहड़ा है वो रिपीट होंदा और फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग होंदा। बच्चे पता लगे थोड़ा जिहा कुछ, बाकी आप एक्सपेरिमेंट करांगे ताकि समझ आएगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या मतलब है? ऑपरेंट कंडीशनिंग रेफर्स टू अ काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस वेयर अ रिस्पांस इज मेड मोर प्रोबेबल और मोर फ्रीक्वेंट बाय रीइंफोर्समेंट। क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग? जिथे कोई रिस्पांस जिहड़ा है वो ज्यादा होने के चांसेस है जो उसनू रीइंफोर्स करया जाता है। ठीक है, जिवें मैं तुहानू एक दसदा, जो आपां किसी बच्चे नू कहने हैं कि कोई केबल सुनाओ या कोई पोएम सुना दो, तो बच्चा पोएम सुनाता है और आपां उसनू फिर रीइंफोर्स करते हैं, है ना। तो वो जिहड़ा बिहेवियर है वो ज्यादा पक्का हो जाता है और बच्चा फिर उसनू अगली बार होर ज्यादा वधिया करन दी कोशिश करता है। उसनू पता है कि जे मैं अच्छा सुनाऊंगा तो फिर मैनू चॉकलेट मिलेगी। इस तरह बच्चे का जिहड़ा बिहेवियर है वो कंडीशनड हो जाता है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग is a method of learning that occurs through reward and punishment। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जिहड़ी है वो ज्यादातर ਆਪਾਂ रिवार्ड एंड पनिशमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एल्बर्टो एंड ट्रॉटमैन ने भी कहा सीगा, टू पुट इट वेरी सिंपली, बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस टेंड्स टू बी रिपीटेड। ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ उसनू रिपीट ज्यादा करिया जाता है और उसनू लर्न भी ज्यादा वधिया करिया जाता है। बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस टेंड्स नॉट टू बी रिपीटेड। और यह जा बिहेवियर जिसनू करके बच्चे नू पुनिशमेंट मिलती है वो बार बार रिपीट नहीं करिया जाता और इस तरह वो जिहड़ा बिहेवियर है वो लर्न भी नहीं होता। बच्चे ये पता लग्या कि क्या है इस डेफिनेशन दे विच? हाँ, इस दे विच सिंपली ये गल कही गई है कि वो बिहेवियर जिसनू करन तो बाद बच्चे को खुशी मिलती है या उन्होंने रीइंफोर्समेंट दी जाती है, रिवार्ड दिता जाता है, तो वो बच्चा बार बार उस एक्टिविटी को रिपीट करता है। ठीक है, जिवें मैं कहा कि बच्चा पोइम सुनाता है तो आप उन्हें चॉकलेट देंगे, बच्चा पोइम सुनाएगा आप उन्हें चॉकलेट देवांगे, है ना। तो ये जिहड़ा हैगा वो ज़्यादा वधिया फिर नेक्स्ट टाइम याद करेगा। लेकिन यह जा बिहेवियर जिसनू करके बच्चे को पनिशमेंट मिलती है या जिसके कॉन्सिक्वेंसिस अच्छे नहीं होंगे, प्लीजेंट नहीं होंगे, तो यह जे बिहेवियर नू बच्चा जिहड़ा है वो रिपीट नहीं करता, क्योंकि उसनू वो बिहेवियर करके पनिशमेंट मिलती है। जिवें बच्चे ने कोई शरारत करी तो आप बच्चे को फिर सजा देते हैं, रिवार्ड एंड पनिशमेंट देते हैं आप, और जो पनिशमेंट करते हैं फिर बच्चा उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करता, और जिन्हां एक्शनस को दोबारा रिपीट नहीं कराया जाता वो एक्शन जिहड़े हैं वो बिहेवियर जिहड़ा है वो लर्न नहीं होता। बच्चे हुण दसो समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड। स्ट्रेंथन्ड का मतलब क्या है? बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड मतलब
अकर मोर फ्रीक्वेंटली, जो बार बार फिर बच्चा करता है, व्हेन इट इज फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट। वही सेम गल दोबारा कह रहे हैं कि अजिहा बिहेवियर जिसनू करन तो बाद बच्चे नू रीइंफोर्समेंट मिलदी है, बच्चा उसनू बार बार रिपीट करता है और बार बार रिपीट करन दे नाल ओह बिहेवियर उसका स्ट्रेंथन यानी कि पक्का हो जाता है। और वीकेंड अगर उसनू रीइंफोर्समेंट की जगह पनिशमेंट दे दी जाए। अगर बच्चे ने कोई बिहेवियर कराया है, जिवें ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ भी कराया ਸੀਗਾ कि अगर बच्चे की कोई बैड हैबिट ਆਪਾਂ ने छुड़ानी है तो उसनू रिपीट ना करन दो। अगर बच्चा उसनू करता है तो उसनू पनिशमेंट दो ताकि बच्चा उसनू रिपीट ना करे, और जो बच्चा उसनू रिपीट नहीं करेगा तो उसकी वो आदत छुट जाएगी, हैपन्स लैस फ्रीक्वेंटली, वो आदत फिर घट जाएगी, वीकन हो जाएगा वो बिहेवियर जो है बच्चे का। ठीक है, तो जो स्किनर द ऑपरेंट कंडीशनिंग है, स्किनर यूज द टर्म ऑपरेंट टू रेफर टू एनी एक्टिव बिहेवियर। ऑपरेंट का क्या मतलब है थे? एक्टिव बिहेवियर दैट ऑपरेट्स अपॉन द एनवायरनमेंट। जो बच्चा अपने एनवायरनमेंट ਨੂੰ देख के एक्टिवली पार्टिसिपेट उसਦੇ ਵਿੱਚ करता है और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਹੁਣ ऑपरेंट कंडीशनिंग recognizes the difference between elicited response and emitted response। बच्चे देखते शॉर्ट नोट 2 नंबर ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ है। elicited response and emitted response। ਜਿਹੜਾ elicited response है ये की है? associated with a particular stimulus। ये है जो stimulus ਨੂੰ देख के बच्चा रिस्पॉन्स करता है, that is elicited। ਜਿਹੜਾ कि saliva डॉग ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਵਲੋਵ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ elicited एंड द लेटर यानी कि एमिटेड जिहड़ा रिस्पॉन्स है वो की है? रिस्पॉन्स दैट एक्ट ऑन द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इस दे विच बच्चा रिस्पॉन्स पहला करता है एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स बच्चा पहला करेगा एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने के लिए टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके नाल अलग अलग तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बच्चे समझ आया दोनों का डिफरेंस, एलिसिटेड रिस्पांस एंड एमिटेड रिस्पांस? यस सर। एलिसिटेड रिस्पांस, हाँ एलिसिटेड रिस्पांस है जो बच्चा स्टिमुलस ਨੂੰ देख के रिस्पोंड करता है, जो ਆਪਾਂ पैवलोव करया। और एमिटेड रिस्पांस वो है जो बच्चा रिस्पोंड पहला करता है और उसको रीइंफोर्समेंट बाद मिलती है। ठीक है,